It's continuation to previous video number 8, which I'm talking about regarding UNO issue and Jammu and Kashmir. Problem we have been facing, continuous facing, because the video was disturbed due to singles problems or some other, I don't know. It happens often. So I just continued on this video 8A, and that is in continuation to previous one. And this situation has been ongoing, and it's now about 55 days. We have reached to a situation which is very dangerous and explosive. So we are saying in UNO that it's nothing to do with UNO, it's nothing to do with world, but in fact it's related to world. It's a very cumbersome issue, very complicated issue. It was not complicated on that day when it was commissioned. It was not complicated before it was changed from Constitution 370 were abrogated, and constitutional orders were abrogated, and you can say the instrument of accession is abrogated, and also Jammu and Kashmir constitution is abrogated. I presume this all were abrogated, though there is no official order, but these must have been abrogated. But 370 was touched in, and 370 was, you can say, removed from constitution of this country. So this issue says that there are so many complications we have achieved in. We have to answer these complications, and we cannot just stop at saying and got ourselves away, run away from world body that this is an internal issue. It is maybe an internal issue for us, but this is not an internal issue for public of that area. They are our public. They came to this country with some motivation, with some objective. But what has happened is that they have not received that objective. We have maltreated them, abused them, and that is not our nature. Our society is not like that. We are India, Bharat. We are a different country. We are a country of tolerance. We are a country of everything. But currently, tolerance has diminished to zero and maybe negative, and we have lost our roots that we were born with. We have a standard society. In the past we had tolerant people, we have brilliant people, we have, you can say, convincing people. But now situation is telling something else, that we have a power to suppress and oppress a community, a state community, irrespective of what they are. The religion has nothing to do with this. When you consider citizenship of this country, and in that case, I don't consider religion or caste, because once you are a citizen of this country, means you are a part of constitution of this country, and you are working under constitution, living under constitution of this country, and constitutional master and constitution my equal to God, that gives me powers and authority to live, authority to think and work, and to survive and take rights and do duties for this country. So this is a different type of artificial God, you can say. It's the power of this is a spiritual of my life to live in this country, which is very significant for me. And there is no meaning to again and again describe that. It's available in documents. You can see yourself. We are not sure that we are documented people. We are really but reading documents, us and documents. We don't refer documents. We only hear and speak something. We only hear and believe. We are very good in believing. We are very good in taking rumors. We are very good in taking fake news and all that, because it's all falsifications, and we believe in falsifications. We don't believe in what our minds say and I says. Our minds don't work, and we don't want our minds to work. We just want to live according to a human being, and like the animal society, we have no stamina to analyze and research. Only hardly 1% or 2% people could be there in our country who do all this, and other people just listen and accept or don't accept, and that's all. They start arguing for nothing. They don't know information. They argue. If you see on television, they don't know anything. They don't have complaint information, no feedback, but they keep on arguing for hours together, which is just a foolish status, foolish society's acts. If you don't know some information, then complain, why to argue? Better keep mum, or you take first analyze, complete, take it, draw information, and then understand that, and then someone asks, you can answer. But so I raise this question to many people, that 370 what you're talking about, do you know what is that? I didn't get an answer from someone that I know about this. Nobody said that. Just so there's an issue of land and you can buy lander, and this is an answer, which is irrelevant, nothing to that, but that answer like that. And I was sorry to say that same thing happens to everybody of us, every person in this country, in same train and same sailing ship. This is not acceptable. We may avoid something, but that thing will not leave us from following us. They will follow us. They will not leave us. This happened. Our Prime Minister says in UNO nothing about this issue. I thought he will be a justified person. He will be a brave person, not a coward one. He will speak frankly that what we did is right. Because after all, so what for? What for you have gone there? It's a forum of world. You have to justify your actions. Okay, 370, you didn't want to talk, but you must have raised the issue of Kashmir people. You must have spoken against Pakistan. You just try to avoid everything. Why didn't you speak on Pakistan there?
You're talking extremism and terrorism. People are united. What is terrorism on your part? Does your constitution, does the constitution of this country, Bharat, India, permit you to do what you have caused or were affected upon poor people of Jammu and Kashmir? Poor people in sense of rights, not in sense of finance. You kept them very beautifully, you kept them very comfortably. It's comfort. You kept them for under curfew for continued time. Now 55 days could be 3 months, could be 4 months. Okay, if it's a law in our situation, a precautionary measure you have to take, you just 2 or 3 days or five. Now why don't you have courage to speak about this? Why are you running away? When you go to America, you say, oh, everything is right, everything is fine, there's no problem, all is well. If this is well, I don't define what is the meaning of well, and I don't define what's the bad, if what's the negative in life. If this is okay, this means you are telling everyone, yeah, I'm doing this with them, I can do with you also same. So everybody should be threatened. Everybody should be warned. But people are in narcotism. People are just sleeping for sake of sleeping. They don't want to talk about this. People are happy that these people are down. These people are locked up. I don't know mindset of people of our society. They're happy, they're enjoying, everything's enjoying. Oh, this has gone, let them die, let them be under curfew. Why should we worry about them? Yes, you should not worry about them. Because it's not happening with you. It's not happening with you. Has it happened with them? I have to ask you. What's that? You don't know that. So you're happy that they are going to curfew. Shame onto you. Don't feel you're not fear for God. You're going to temple. You're going to 3 day worship, and you're going to Devi worship, and you're going to Kali worship. We are all meaning celebrating people, religious people, Dharma and Hindutva and this and yes, this Hindutva. Hindutva teaches like this. You are Ravana Hindutva. Whose Hindutva you are? You're Rakshasa Hindutva. You are Asur Hindutva. Which Hindutva is this? It is not human Hindutva. It is not Dharma. Dharma doesn't say this. Dharma says otherwise. What Dharma says? Listen to Krishna, what Krishna says. Have you heard him? Have you understood him? Krishna or Rama this said, Yada yada hi dharmasya. Yada yada hi dharmasya galanir bhavati bharat. Do you understand this? You never understand this. Yada yada hi dharmasya galanir bhavati bharat. Abhiyutthanam adharmasya tadathavanam srijami aham. Praritraya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma sansthapadharthaya sambhavami yuge yuge. Do you understand this? What you used to say? You consider him as God, you Ram your God, you say all thus your God, Tridevi is your God, Devtas your God, Devs your God. So all are gods, but you never understand them and analyze them. What they said, they never said we belong to Hindu, they never said this is our religion, they simply said Dharma. Dharma is a principle, Dharma is a formula, Dharma is a direction, Dharma is a teaching, Dharma means right, that's it. What is right, what is good is dharma, what is not good, what is negative is adharma. That's what they said. There's no say Hindu or Muslim or Sikh or Isai, there's nothing as such. When God says, I have no dharma, no religion, why you say that? Yes, you accept dharma, who says don't accept this? But do you follow that? Whenever there is a sin to its brim, to its head, I'll be here. What you did in Kashmir? You may say they are bad people. You may say they are terrorists. You may say whatever you want to say. Nobody objects that. But whole society is like that. Just like you said, people are Muslims, people in Muslim society are terrorists. Are all terrorists? Are all terrorists? So you clamp down those 1 crore people. Are they terrorists? Are all maybe 10 of them, 1% of them, some of them. But can you punish all? Under what crime you have punished them? I have a right to ask this because I am citizen of this country. I am living under the constitution. I have full liberty to ask you. And I have not only to ask you, I will ask every citizen of this country. I will ask a court of this country. I will ask the legislature of this country. I will ask everyone of this country. I will ask the reporters of this country, journalists of this country, television journalists. I ask everybody what you are watching. Why don't you open your mouth? Why don't you open your eyes? Why have you become animals? Why have you become sleeping lot? You have no capability to answer yourself. You are just a slave, one slave, Modi's slave. I am not Modi's slave. I don't want to be. I am slave to God only.
not to myself. I will not accept something which is not positive, which is not based on dharma, which is not based on justification, which is not in righteousness. It's clearly said, it's Bharat. And whenever there's a sin goes to top, you can say rouges out, I'll be there. This is what it says, yada yada hi dharmasya glanirvavati Bharat. It means is that. But you never understood that. And you are claiming you're Hindu. There's no term Hindu in whole world. Go and find, tell me where it is. Is it told by some god that we are Hindu? Nobody told that. You yourself appointed Hindu. To keep yourself, don't tell me all that. I don't know. Listen, I'm Hindu. I don't believe in any religion, any sect, because all religions are artificials. The only people appointed themselves, I am Muslim, I am Hindu. There's no dictate from God that you are this. God never accepts any religion. God is religion free. God is soul. God believes in humanity. God believes in work, and work is worship. Nothing else is worship for me. For me, facts are facts. Right is right. Wrong is wrong. My religion is that. And my religion is human being. If you help human, you are human, good human. You service. You are serving God. If you don't help human, you are not. You are like an animal. You are like an animal, just like a dog barks behind a cow, and just you can say dog barks behind a sheep. This happens. They're animals. They don't have understanding. They just want to survive for themselves. The dog thinks that if some cow comes to take my food, same thing as sheep, lamb say, I always come to take. They have that type of planning. They don't have clothes, even they have a house, nothing else. They're just living for sake of food. But human beings are not like that. We are developed society, we are running away, we are moving forward, we have some long life, and we think that we have to do something, we are doing that. But why are we acting against our brothers and sisters? Whole world is our brothers and sisters, not only our country. 7 billion people or 8, whatever we are now, all our brothers and sisters, we come from same God. And we say in Dharma itself that Vasudeva Kutam, but you are not considering Vasudeva Kutam, you are considering your Kutam. Vasudeva means whole world or universe. If universe is your family, you are not accepting a small quantity of people as your family. Only small quantity of people, you are suppressing them as you are the prisoners. Are they criminals? They offended you. What offended them? Means you did that. But there's a long explanation on that. Means you are thinking you are right at their own basis. On what basis you are saying, is this world your property? Is this country your property? Are you on this property? You are not. This country and this world has been there for centuries, for millenniums, or for I don't know how many billions and trillions or other years. So for 50 years, for 60 years, you have come to this earth just to play all like this. God made you prime minister, God made you president. It's only for that purpose. You play with like kids. You do something and go away. You take Notbandi and go away. You do Notbandi and leave people to themselves. You do something else and leave them. No responsibility, no accountability, nothing. Same thing you did here. After that, you run away. You put curfew on them and run away. Who's responsible for that? Lift it immediately if you are a human being. Why do you worry? Why are you afraid? You're prime minister of this country. You should have guts. You should have open speech. We don't want acting. We don't want dramas. Everything is fine. Everything is fine. Everything was fine. People are dying, farmers are dying, students are dying, no money with people, shopkeepers are closing shops, there are no wages, there's no safety for women. You're saying this is fine. They are not getting money, no jobs, unemployment, factories are closing, industries are closing, everything's closing, economic is down, and you're saying this is fine. You're selling companies, you're saying railways, you're saying all that, you're saying fine. Your people are raping women, you're saying you're fine. What's fine? Your curfew for 1 crore people, you're saying it's fine. It's not fine. Why you fear world? World knows everything. It's the internet age. It's universe age. People, information not like anything. If you just send information immediately, it goes to US, to some other country, and report of foreign, things fine, that the blind think. And all other countries are same, not only you. Israel is saying, USA is saying, they're all worried in their own. Israel is thinking for Palestine, looting Palestine, and America is thinking loot Iran. America before looted Libya and looted Iraq, and they want to loot everywhere. They are because they have this business. They are looters. They don't have the constructive. They want to see people fight. Both countries fight. They sell maybe France or maybe USA or maybe England or maybe whoever, Russia or someone. They all want to sell themselves to you because they don't have food to eat. They want to take this money and eat. This is everybody's, but we are spiritual society. We say this is God's land. We ourselves call this Devta's land. This is God's land. Our country is like that, but we have not acting like that. I'm sorry to say that we are great people, avaricious people. Why are we done that one?
Those people who struggled for our living, we had no clothes even to wear in some days. If you go to 200 years back, how we used to live then, we forgot that. We forgot, we were suppressed by foreigners. We have forgot that. They beat us, used to beat us. They did not have to study, they did not have to live a good life. So we are responding now same way. What's the difference between our soul? We are not liberals by soul, we are just liberal bodies. We have no liberty of soul, we don't have life, we don't have thinking, we have no liberty of understanding. So where we are we really human beings? We are not human beings, I should say. We are foolish society, foolish people, sleeping people. We are not all serious, and that is why we are behind everybody. We are behind every country. We may say we are doing this, we are not doing this. You can see our people, you can see any professional, they are not serious enough in their job. They are just doing job for sake of service, for sake of, you can say, doing something. They are not devoting to job, they are not dedicated to each and every sphere of job. They are not thinking of research work, they are just doing something. Nobody is worried about this. Somebody falls on job, there is no safety control, there is no quality control, there is no quality management, and there is nothing, just living for sake of living. And that's why we are behind everywhere. We have degrees, diplomas, everything, we have position. I think it has no meaning at all. When we are not thinking, not using mind, we are afraid. If we are afraid society, we can't move forward. You have to sacrifice to get something. You cannot get something without sacrificing. We are not sacrificing, but we are sacrificing others. As we do in our religion, oh, sacrifice one animal, sacrifice this, sacrifice that, you get this one. This foolish ideas there in all the thoughtful thoughts. So what we are doing is, why we are so afraid? Why can't we solve problems ourselves? Are we so stupid people? Are we have no minds at all? Can we not take risks? Can we not talk to people? A government that cannot talk to people cannot be called a government. A prime minister who's afraid of people cannot be a prime minister. How can, if you are afraid of people, you are just talking on your own one way, you are not even facing your people, you are going to NRIs and facing and talking nothing to with them, they are foreigners for us. Those people who are permanent resident of the USA, they may be from here, but done nothing to do with us. They are their people. If they were our people, they would have stayed here. They have gone. Yes, money earning is something else doing this, but come back. They are not going to come back. We are private. We are US people. We are US citizens. Okay, work for US. Why do you work for us? We will work ourselves. You are going to beat Bush with them. Everything is fine. Are they going to ask if everything is fine? No. And what was the necessity of saying this is fine? Who did ask you this? It doesn't ask you to fine or not. Everyone knows you're fine. If America comes and says, I'm fine, why should this be fine? Russia comes and says, I'm fine. No, you don't say that. What is no necessity of? Because you are not fine, you try to justify, you try to announce that we are fine. This means you are not fine. There is no need for what? And they are supporting that country's election. It's a really stupid idea. No need. Why? Yes, we are friends, we are fine, we are going to meet each other, we are having a good interaction, that's okay. Political interaction, consumer interaction, business interaction, future interaction, and that's okay. But just to say I am fine, I was not fine, this means you are not fine. And you say that we have annexed this part of our country, it's already attached to you, it's already part of yours. Why do you do that? If you say now we lose our part, this is not part for you, it's not your part. So your contradictory statements, your contradictory thinking power is no use. No use at all. One should have mind, brilliant mind. You curse others, you bad names to those who did something good for the you used to curse Manmohan Singh, really it is tyranny. Manmohan Singh did a lot for this country, though you didn't used to speak too much like you speaking, but speaking doesn't solve any problem. Speaking is speaking, working, result-oriented approach, that is helpful to someone. Your results are always negative. All your acts have one negativism. It's our negativism. And this, for 55 days, they are down, they are not up, and you have no courage to get them up because you are scared, you're afraid, you're worried. What shall happen? How can I encounter that? This means your act was wrong. Your act was wrong. You don't accept that, accept it's up to you. Public cannot speak because you don't speak. Our public a parrot of yours. Our public had become a parrot of yours. Those bhakts, those devotees of yours, they speak same language which you speak. They give same reasons which you see. So they are your parents or you are their parents. Both are fools.
If those people who cannot speak for country, I don't speak for you, and I don't, I'm not interested in some politician. I shall think of my country, and I think for my country, and not only country, for whole world. Because you are not restricted to one area now. For example, environment, it's not just restricted to our country, it's the whole world. If the temperature is boiling, it's the whole world, all over. It's mining, ice is melting everywhere. So you cannot simply say, I have to think for me. Yes, for some economical awareness, you can think yourself, for some advancement, for even for education, it's not, it's internal now. Education is worldwide. Engineering, medical, other professions, all are worldwide. You have to update yourself to that level. This is the only thing left is your internal matters. Social matters, even social uplift is, WHO is there, UNESCO is there, many other societies. Everything is based science based, everything is economic based, computer based. So you cannot say that's internal. Nothing is internal. People are interlinked together. How can say internal? Everybody knows what's happening in their country. I know what's happening in USA. You know what's happening in China. All know. Everybody is fighting. Everybody is cooperating. This is happening everywhere. So you cannot restrict yourself. Absolutely, that's an internal issue. External issue. Issue is issue. You have to solve it. Those appreciate if you solve it, and if you don't solve it, they will say we'll solve it. Just like your Trump says, I can become arbitrator. Nobody has invited him, but he says, I am arbitrator. I can become. Okay, he can be. This means there is something moving behind. That they know something is wrong. This you cannot say is internal then. It's an external issue. They know it. Everybody knows. Yes, we'll help you. See, special word from Europeans and West people. I'll help you. Just like it is thank you from British. They say thank you. There are two meanings. Thank you means I'm grateful to you, and also thank you, please go. If this is the real meaning of thank you. If you say thank you, says please go. I am grateful, but completes this. I am grateful, please go. Same thing is happens. I help you. I help you means you cannot solve this problem. I can solve for you. This is meaning of help. Why don't you understand that? If somebody says I can help, it means he is insulting you. It's not commercial shop. You are not able to find some item that attendant shall find item for you. It's not that situation. If somebody says on the face, I can help it. This means you are incompetent, you are inconsistent person, you cannot solve your problem. I can understand your problem, I can solve it for you because you are a fool. Is this wrong? Why do you need to help me? I can solve my problem. Why have you brought that state to this situation? That means a question to this state that somebody is coming here to tell you, I can help you. I don't need help someone. This I should have solved it before I came to you, or I should have some solutions. You should have said in your note that we had some problem, we treated it, we cured that problem, and here these people are free to move. There's no problem to them. They're happy with us. They are cooperating with us. Everything is fine. It's clear one that will be appreciated. That will admire by whole community of world. You didn't that. Everything is there. Your enemy is saying something, so he has brought it to picture. If you don't bring it, missed it. This means they would say, you avoided this, but this guy did gentleman, but then they will become gentlemen. The gentleman brought us. What shall you'll say, oh, we'll respond to this. You respond or don't, who bothers with that? It's already come on record, already come on minutes of meeting of this session of UN Parliament. UNGA that is, of course, you have, UNGA is not a logical, it's not illegal, it's not legal sense, it's not recorded, it's an implementable, there's no meaning of that, but happening is happening, proceeding is proceeding. It's come on record, that is some problem. If you had told them, they would not be there. He would simply say, solve it. But he projected it, and you then projected it, means he won over you. Why do you understand that? He so rided over you, rode over you, you do not understand that. But this is what I'm explaining, because there has been some problem if you don't understand that. So we cannot suppress people for long, and I have been told by someone that these Kashmiri people, they are used to keep about half a year, 6 months food with them, so they're used to that. So maybe they are not worried about food. That's why they are getting day by day stronger. There's no resistance from them. They are just tolerating. They are just tolerating till they can tolerate. And that day when there's their limit, they can think, yes, it's now on our eyes, water has gone up our heads. If they burst out, they shall burst out. And that's a problem for whole nation that day. They will not worry about military. They will not worry about police.
If they burst out, when somebody bursts out, he doesn't care for someone else, he doesn't care for bullet or bomb. They burst out means they start taking their life free, and that is a dangerous situation that come in. If that comes in, you have to find solution. It's better to release them before that situation comes in, or there is a possibility that enemy sends some civilians to your state and they start quarreling. What shall you do in that? You cannot use bullets on civilians. There may be say 1 crore people come from Pakistan and enter into this area. What shall you do? You cannot kill them. You cannot use bullets on all those 1 crore people. And these 1 crore people, this is a big question to understand. I'm not talking about hot person. Yes, if there's hot person, that's something else. That's military to military. But civilian to military or civilian to police is a different state. And that's what I think Pakistan is going to play, that kind of action, that he will use his society, civil society, to encounter you. Then what? Have you ever thought of this? You see their videos, what they are talking about, what Imran is hinting at. They are not interested in military fighting. They are interested in civil with police fighting. And that is very dangerous. Very dangerous. This can be a big question in future. This was my contemplation of thinking about it. That's a possibility, because hinting is that you may understand, you may not understand. And if there is a military fighting, if it goes to nuclear fission, who is responsible then? See, when people are angry, when they want to teach a lesson, when there's an ego issue, there's a victory issue, nobody thinks. They just do it. We'll see. Who knows results? How many are killed? Who is killed? Who is won? Who wins in such situation? Nobody wins. It's a lose and lose, nothing else. Nobody wins that way. War is war. It's friend of none. What happened in Iraq, we know. What happened in Libya, we know. What happened in Afghanistan, we know. What happened in Syria, we know. What happened in Palestine, we know. What happened in Yemen, we know. Is there any place where the kind of situation we have? Yes, everywhere there is an example, the deterioration, destruction, running about people as refugees. Everywhere there is a crisis, crisis and crisis. Why we are running crisis? Why don't we become mature people to resolve it accordingly? It is required to be resolved. We are not thinking that way. And that is our weakness, I should say. Our people's weakness, our society is dead society. In fact, they are not even cool because they don't have courage to speak. You are just living for sake of your body. You are no spirit. You are not a spirit people. We have no spirit at all to speak up, to raise issue, and we are, you can say, zero society. We are just interested. Okay, let them die. We don't bother. You are so cruel in mind, so rude in mind, that you are not caring for your brothers and sisters. Used to be called by you your brothers and sisters. You used to say they are all brothers and sisters. But that treatment shall you give to your real brothers and sisters, your family siblings? Shall you give that type of treatment? You shall never give that type of treatment. Even if your siblings don't talk to you, they will protect them. But here you are not doing that. Because you don't treat them as such, you just treat that land should come to us, or their women should come to you. This your BJP people said. If that is situation of this state, then I have no answer to that. Because you are not human being, you are a great people, you are avaricious, you don't know what to do, you just want to loot others, and that's all. हमारा समाज इतना चेंज हो चुका है, मैं जानता नहीं था. ऐसा नहीं था समाज, ये देश ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं था. पीछे से आप देखिए, बहुत अच्छा था, सामाजिक था, एथिक्स थे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जवाब था, सोचते थे दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए. आज उल्टा हो रहा है. आज छीना झपटी हो रही है. एक दूसरे को छीन लो, मार लो, पकड़ लो, खींच लो, लूट लो. जब लूट खसोट हो जाए, दूसरे को दूसरा ना समझे, किसी की औमन की इज्जत ना समझे, किसी का ना समझे, लूट खसोट की खा जाए, तो देश का क्या होता है वो आप जानते हो. जब राजनीति चोरों की बन जाए, डकैतों की बन जाए, गुंडे बदमाश राजनीति में आ जाए, सेवक ना आए, तो देश का क्या हाल होता है हम देख रहे हैं. 233 बैठा रखे हैं हमने लोकसभा में, 233 लोकसभा एमपीज, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वी नो दैट. बैठे हैं वहां, राजनीति कर रहे हैं. अब कैसी राजनीति होगी हमको सोच लेना चाहिए. हमारा तो खुद प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का है, सारे आरएसएस के हैं. आरएसएस कैसे हम सब जानते हैं. आरएसएस की बुराई करने का कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि आरएसएस तो सारी दुनिया जानती है आरएसएस क्या है. तो जब ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ गए, तो उससे हम क्या आशा करते हैं. वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान से आए हैं, वो राम के खानदान से आए हैं. कहाँ से आए हैं वो कहीं से नहीं आए. वो कुछ भी नहीं है.
उनको वही करना है जो वो जानते हैं, जो सिखाया जाता है, और वो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं। हम इतने डर रहे हैं, हम बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते भाई ऐसा क्यों हो रहा है। होने तो यार, ठीक है ना। बात जब धर्म की आती है, ईमान बिक जाता है, अपने धर्म की आती है, सब कुछ बिक जाता है, मेरा धर्म सब कुछ है, वही बात हो रही है। आप सोचिए, यही लोग अगर कश्मीर वाले, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन सोचना पड़ता है, यही लोग किसी और धर्म के होते तो आप क्या करते। यही लोग क्रिश्चियन होते, या यही लोग आप जिसे हिंदू कहते हैं वो होते, या बौद्ध होते, तब आपका क्या रवैया होता। ये बात सोचने की नहीं है क्या? क्योंकि 98% लोग या 95% लोग वहाँ मुस्लिम हैं, इसलिए दबाए जाओ इनको। अरे भाई, मुस्लिम हो हिंदू, मेरी इज्जत पे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। जब तक वो भारत का नागरिक है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा करी जानी चाहिए, और ये कर्तव्य देश का होता है, देश की सरकार का होता है, देश के न्यायालय का होता है, देश की पब्लिक का होता है, सबका होता है। लेकिन सब सो रहे हैं। भाई, हमें नींद आ रही है, जगाओ मत, हम जाग नहीं सकते, बहुत थके हैं, बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया, हमसे उठना नहीं जा रहा, हमें सोने दो यार, चाय बाद में पी लेंगे, दूध बाद में पी लेंगे, कोई जल्दी नहीं है इस बात की। हम सोच ऐसी रखते हैं। मतलब ये है कि हम इतने गिर चुके हैं, हमें किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। हमें एक राजा की परवाह है, जो बदमाश राजा है, जो लूटना जो दिखाना चाहता है, देखो मैं कितना बदमाश हूँ, मैं आपके लिए कितनी बदमाशी कर सकता हूँ। हम उस सोच में बैठे हैं। तो भूल जाता है कि वो जो इंसान बना है, जो इस पोस्ट पे आया है, वो उन्हीं लोगों की वजह से आया है जो उस देश के नागरिक हैं। लेकिन जब वक्त आता है, वो उनको मारता है, उनको पीटता है, उनके जॉब छिनवा देता है, उनकी जिस जॉब कंपनियों को बेच देता है, उस देश को बेच देता है, सब कुछ कर देता है, बाहर जाकर झूठ बोलता है, घर में तो रहता नहीं वो, उसको बाहर जाने का बहुत शौक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, दुनिया को दिखाने का, देखो मैं क्या हूँ, इवेंट्स कराने का, बड़ी बड़ी बातें करने का, लेकिन अपने देश की तरफ प्रॉब्लम सोल्व करने का उसका समय नहीं है, इतना बिजी है वो बुलेट ट्रेन को छोड़ो, वो रॉकेट में बैठता है हमेशा। अरे, देश की सोचता नहीं है, बाहर की सोचता है, रशिया की सोचता है, अमेरिका की सोचता है, उनकी चिंता उसको पड़ी है, अपने देश के लोगों की चिंता नहीं पड़ी है। हमारा युवा रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ लिख के भी काम नहीं सिखा रहा उसको कोई। अरे, काम सिखाओ उनको, कुछ उनको हाथ का काम सिखाओ, कुछ और काम सिखाओ। वो किसकी ड्यूटी है? वो आप ही की ड्यूटी है, किसी देश की नहीं। आप ऐसे यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, आपको कॉलेज खोलने चाहिए ऐसे, जहाँ एजुकेशन के अलावा एकेडमिक एजुकेशन कुछ और भी काम होता हो, लेकिन आपको चिंता नहीं है उस चीज़ की। क्यों करेंगे आप चिंता? आपको तो सीट मिल गई, आपको क्या लेना देना है? आपकी सीट परमानेंट है, मरने के बाद भी आपकी रहेगी। एक्स प्राइम मिनिस्टर पास्ट प्राइम मिनिस्टर कराओगे, आपको कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मरते हैं लोग, मर जाए, 1 करोड़ मर जाए, 2 करोड़ मर जाए, 5 करोड़, मेरी जेब से क्या जाता है? मैंने तो 370 हटा दिया। लेकिन आप ये नहीं जानते, कभी कभी हटाना भी मुश्किल दे देता है। हटाना इतना आसान नहीं होता जितना रखना होता है, याद रख लेना। आपने हटा तो दिया, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या हटाया। कई बार हटी हुई चीज भी मुसीबत बन जाती है। कई बार सोच समझ के हटाना चाहिए, सोच समझ के ही, जैसे नौकरी से उसको निकाला जाता है सब कुछ आगे पीछे देख के, अगर वो काम नहीं जानता हो तब। जब आपको 370 ने कोई नुकसान नहीं दिया, तो आपने तो क्या बेचैनी थी कि उसको हाथ लगाना था? उसके कई रास्ते हो सकते थे, कांग्रेस ने भी तो बहुत रास्ते निकाले थे उसके लिए। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको हथौड़ा मारना था, उस पर आप आराम आराम से भी काम कर सकते, लेकिन नहीं, आपको दिखाना था, देखो ये काम 70-72 साल में नहीं हुआ, तो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मुझे कितनी देश की चिंता है कि मैंने ये काम करके दिखा दिया। ये देश का काम है। सड़क पे आप खुदाई नहीं कर रहे, आपको केबल नहीं डालनी है, आपको सीवर लाइन नहीं बनानी है। ये भविष्य का काम होता है, भविष्य का इफेक्ट करता है, लोगों का यह इफेक्ट करता है, वो सोचना चाहिए। आप नहीं सोचते थे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप हैं इस देश के अंदर। बाकी तो किसी को औकात नहीं है कि आपके सामने बोल सके, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके साथ जवान लड़ा सके, आपसे क्वेश्चन कर सके, आपसे बहस कर सके। किसी की हिम्मत नहीं है। ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को झाड़ लगाई जाती है। ये भारत है, यहाँ डेमोक्रेसी दिखाने के लिए है, वर्किंग के लिए नहीं। ये ब्रिटेन नहीं है जहाँ कुछ भी बोलो, क्यों भी तू क्या करने आया अस्पताल में, तेरी औकात क्या है, क्या प्रेस को लेके यहाँ पे आ गया। वहां लोग हिम्मत रखते हैं पूछने की। यहाँ तो गुलामी की जिंदगी जी रहे। ठीक है, अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी तो नहीं चली गई। गुलामी तो अभी भी है और रहेगी, क्योंकि हम गुलाम रहना चाहते हैं, हमें आदत हो गई है। हम आज़ाद रहना नहीं चाहते। आज़ाद रहते तो आज ये बात नहीं होती। आज़ाद रहते तो लोग पूछते, आपने ऐसा क्यों किया कश्मीरियों के साथ? कोई नहीं पूछ रहा। कुछ होंगे चंद लोग जो पूछते होंगे, उनकी वैल्यू क्या है? जब तक सारी पब्लिक चिल्लाती नहीं है। अरे, अच्छे अच्छे देशों में राजगद्दियां उड़ाई गई, इजिप्ट में उड़ाई गई थी राजगद्दी, सूडान में चेंज कर दिया सारा सिस्टम, और भी बहुत से देश हैं हलचल हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ सब बैठे हैं मौन धारण करके। मौन धारण अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। जब तक हमारी आग नहीं लगती अपने घर में, दूसरे की आग की चिंता नहीं करते। ये हमारी औकात है, हमारा स्टैंडर्ड है, वैसे सोचते हैं। तो ये कब तक चलेगा?
आखिर एक दिन तो आपको उतरना ही पड़ेगा नीचे। एक दिन तो कुछ नहीं, जब तक आपकी टांग नहीं टूटेगी, आपके आपके अपने घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि समस्या क्या होती है। जब तक आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा आपको। आपको दूसरे की प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती है, ठीक है मरने दो यार, हमें क्या लेना देना है, अपने आप भुगतेगा, इसने किया है भुगतेगा, ठीक है वो तो भुगत लेगा, लेकिन आपको भी तैयार रहना चाहिए भुगतने के लिए। अरे ये क्या भुगत लोगे, भुगतना तो आपको पड़ेगा, आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट करने वाला भी उतना जिम्मेदार होता है जितना प्रॉब्लम करने वाला होता है। ये प्रॉब्लम की हमारी अपनी, इसमें कोई दूसरा क्या करेगा, तो आपने सॉल्व तो नहीं किया इस प्रॉब्लम को, चुपचाप पर बैठे हो, प्रॉब्लम करके छोड़ के चल दिया आगे। जो भी आपने प्रॉब्लम किया, आप बड़े प्रधानमंत्री होंगे, आपको सोल्यूशन तो आते नहीं इस चीज के, बस प्रॉब्लम करके सोचे मैंने जो कर दिया कर दिया, कोई कहिए ना कि मैंने क्यों किया, मैं जो जिम्मेदार हूँ, और उसके बाद जिम्मेदारी कोई लेने नहीं आपको। आपने नोटबंदी की बर्खास्त हो गई, फेल हो गई तो आप आगे चल दिए, आपने जीएसटी का सिस्टम फेल हो गया और आगे चल दिए, आपने ये किया तो आगे चल दिए, और आप ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हैं जिसकी आप जिम्मेदारी लेते नहीं, किसी भी चीज की आप जिम्मेदारी आज तक नहीं ली। कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो कांग्रेस जिम्मेदारी पिछड़ा हुआ है। ये सब बातें कहने से गाड़ी नहीं चलती है, इंजन को फ्यूल चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं है तो गद्दी छोड़ के चले जाओ, आपके बस का नहीं है, क्यों बैठे हो गद्दी पे, गद्दी पे बैठने की जिम्मेदारी होती है, आपको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को, नहीं देते तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप जबरदस्ती आप बैठे हो, पब्लिक आज बस्ट हो रही है, पूरी सब जगह अशांति फैल रही है, जॉब लोगों के जा रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही है, नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, झगड़े में झगड़े हो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दूसरों को दोष डालने की आपकी आदत है। अरे पहले से ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं, मेरे तो गड्ढे ही पूरे नहीं भरे जा रहे हैं। आप प्रॉब्लम करके आगे चल देते, ये आपकी खासियत है, आप लोगों को बेवकूफ बना देते, ये भी आपकी खासियत है। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज है जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं। आप भावना में डाल देते हैं उनको, लोग भय जाते हैं, लेकिन एक बार भावना में डालने देंगे, 2 बार डाल देंगे, कब तक डालेंगे। ठीक है, आपको 5 साल का चांस चीटिंग करके मिल गया, 5 साल और बेशक मिल जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा। आप काम तो करिए ना, आपने काम तो ऐसा नहीं किया। ये काम जो आपने कश्मीर का किया, इसके बहुत तरीके थे करने के, लेकिन आपको बात किसी से करने नहीं, सोचना किसी ने क्यों सोचेंगे, आपको क्या जरूरत पड़ी है, आपकी जब से क्या जा रहा है, आपके बच्चे तो नहीं मर रहे इसमें, आपको क्या लेना देना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई मरे कोई जिए, आपकी दुकान चलनी चाहिए, आपकी वाह होनी चाहिए, देखो मोदी 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 मोदी, बस मोदी मोदी होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, बाकी सब चोर हैं, एक मोदी ईमानदार है देश में, मोदी हरिश्चंद्र के खानदान से आया है। एक यही सोच आपने क्रिएट कर रखी है कि वो ऐसा ही सोचें, बर्बाद हो जाए देश, आग लग जाए, युवा मर जाए, आत्महत्या करे, किसान आत्महत्या करे, आपको क्या, आपको गले मिलना है ट्रंप से, आपको गले मिलना है, आप हर हेड ऑफ स्टेट से आपको हाथ में हाथ डाल के चलना है, आपको दिखाना है ऑल इज वेल, यस ऑल इज वेल, इंडिया इज बर्निंग, भारत इज बर्निंग, ऑल इज वेल, कश्मीर इज बर्निंग, ऑल इज वेल, फार्मर्स आर बर्निंग, ऑल इज वेल, देयर इज नो कंट्रोल, ऑल इज वेल, कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं चल रहा, सही को नहीं जानता, लोग चलान में मर रहे हैं, गाड़ियों के, ऑल इज वेल, भूखे मर रहे हैं, ऑल इज वेल, 80 रुपए तेल हो जाए, ऑल इज वेल, 100 रुपए होगा, ऑल इज वेल, 500 रुपए होगा, ऑल इज वेल, फ्लड आए तो कंट्रोल नहीं, ऑल इज वेल, बारिश आए तो कंट्रोल नहीं, ऑल इज वेल, सूखा पड़ जाए तो कंट्रोल नहीं, ऑल इज वेल, सब वेल ही वेल है, वेल वेल वेल, सूखा वेल, अंदर कोई पानी नहीं है, ये भी होना चाहिए। वेल कई तरह के होते हैं, डीप वेल, शैलो वेल, कौन सा वेल, कैसा वेल, वो भी सोचना चाहिए आपको, खाली वेल कहने से काम नहीं चलेगा, वेल में भी WEL होता है, वेल के कई मतलब होते हैं, लेकिन आपको क्या लेना देना है, आप तो स्वामी हैं, आप तो साधु हैं, आपको वो जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है। अरे कब तक उल्लू बनाओगे लोगों को, कितना दिन तक उल्लू बना लोगे, कितना बन जाएंगे उल्लू, जब पेट भूखा होता है, पेट में रोटी नहीं होती है तो फिर थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं, याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको थप्पड़ खाने रसीद करने लगे, अभी आपकी पूजा कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं क्या क्या लोग मान रहे होंगे, लेकिन हमेशा एक साथ समय नहीं रहता आदमी का, समझ जाओ अभी भी समय है, अपनी इज्जत को रख लो, अपनी इज्जत संभाल लो, सारी दुनिया आपको झूठा कहने लगेगी, लायर हैं आप, अपने लोग तो कह ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पूरा विश्व आपको कहने लगे, तब आपका क्या होगा। आपको झूठा कहने हम तो जानते हो, हम सब झूठे हैं, हम सब झूठे हैं। एक मैं मिला किसी बात में, किसी कैनेडियन आदमी से, अरब का था, वो कहता था तुम्हारे देश में तो सब चीट है, मैं क्या करूं यहाँ पे, ये उसने कहा, आज की नहीं बहुत पहले की बात है, मैं आज की खाली बात नहीं कर रहा, आपकी कंट्री में सब चीट है, सब फ्रेब करते हैं, ये उसने कहा मुझसे, अब मैं क्या करूं उसको, सच तो छुप नहीं सकता, उसको किसी ने किया होगा तभी उसने कहा, कोई ऐसा तो नहीं गया, कोई दुश्मन थोड़ी है मेरा, कोई आता है यहाँ से रिक्रूटमेंट करने आता है, कोई बात करता है, कभी हम उसकी सहायता करते हैं, कुछ और करते हैं, सहायता वो मांगता है, तो कभी इस बात में ऐसी बात आ जाती है, तो मैं क्या मना कर दूं, मैं भी जानता हूँ यहाँ लोग ऐसे हैं, किसी ने उसका नुकसान किया होगा, उसको प्रॉमिस किया होगा, चीट किया होगा, तभी वो बात कर रहा था, वो बात काट गया उसकी। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होते हैं, हमारी बातें बहुतों से होती रही हैं और हम अपने स्टैंडर्ड जवाब देते रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक लिमिट तक ही दे सकते हैं आप,
जब ऐसे हालात होंगे, जब आप लोगों की ऐसी मौतें प्रदान करने के लिए प्लान बना के बैठे हैं, जब आप तैयार हैं कि लोग मर जाएं हमारी बातों की वजह से, हाँ, ये सब मर जाए, मेरी मेरी इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। जब ये सोच इंसान की आ जाती है तो वो इंसान इंसान है ही नहीं। आप दूसरों को मारता दिख जाते हैं, आप उनकी भूख की आपको कोई सोच नहीं है, आप उन बच्चों की फिक्र नहीं है, आप उन लड़कियों की उन लड़कों की फिक्र नहीं, जिनके एग्जाम नहीं हो सके, जो आगे नहीं पढ़ सके, जो वहां जा नहीं सके, छोटे बच्चे जिनको दूध भी शायद मिला नहीं मिला या दवाई मिली नहीं मिली। आपको जब उन लोगों की चिंता नहीं है तो आप कैसे प्रधानमंत्री हैं भाई? कैसे प्रधानमंत्री हैं आप देखिए इंग्लैंड में एक ही विषय के ऊपर, ब्रेक्सिट के ऊपर, तीसरा प्रधानमंत्री जाने वाला है। डेविड मैक्रोन छोड़ गया उसी टाइम, वो इज्जत वाला प्राइम मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था। मैं नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वोट नहीं मिला, रेफरेंडम आ गया, मैं हार गया रेफरेंडम में, लोगों ने कहा है कि ब्रेक्सिट होगा, तो भाई मैं नहीं संभाल सकता, आपको धन्यवाद, आप अपने आप संभाल लीजिए। उसके बाद मैं आ गई, वो फेल हो गई, वो भी चली गई, और अभी जॉनसन आया। देखिए वहां का सुप्रीम कोर्ट ने क्या थप्पड़ मारा है उसको। हमारा सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है? हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, पार्लियामेंट से मुझे क्या लेना देना है, पार्लियामेंट की प्रोसेस होती है नहीं, और स्पीकर डिसाइड करे, मुझे क्या मतलब है, अपनी जान छुड़ा के ऐसे कंधे से हाथ डाल के चल देगा। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट वो यूके का, वो है लोकतंत्र। थप्पड़ ऐसा मारा, हाई कोर्ट ने भी मारा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मारा कि जॉनसन का पसीना निकल गया, उसको पेशाब करना बंद हो गया होगा, वो समझ नहीं पा रहा है मैं क्या करूं, गालियां दे रहा है पार्लियामेंट में आके, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये हालत हो जाती है जब आप गलत काम करते हैं, आप झूठ जब बोलते हैं, इसलिए कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। मत बोलो, चुप रहो, लेकिन सच बोलो। जब बोलो तो सच बोलो। जो मनमोहन सिंह कहता था, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ज्यादा नहीं बोला तो झूठ भी नहीं बोला, और आप ज्यादा बोलते हैं उसमें 90% झूठ बोलते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या है, ये बात समझनी चाहिए। ये होती है डेमोक्रेसी। देखिए आप सीखिए यूके से, हमारे जजों को भी सीखना चाहिए, बहुत बड़े बड़े बनते हैं, सब फैसला कुछ करते नहीं। अगर जज इस बात को लेकर बैठ जाते शुरू में, सुप्रीम कोर्ट के जज एक्शन ले लेते जम्मू कश्मीर की बात को, तो ये विषय आ जा नहीं सकता। गवर्नमेंट को टाइम दो, गवर्नमेंट को टाइम दो। अरे यार तुम अपना काम तो करने रहे, गवर्नमेंट टाइम देने का क्या मतलब है? आप डरते हो फैसला लेने से, आपको डर है कि मेरा रिजल्ट जस्टिस लोया जैसा ना हो जाए, ये डर आपके मन में बैठ के, और आपने एक्शन नहीं लिया। और आज 55 दिन हो गए उन गरीबों को, उन लोगों को जो मरे हुए हैं सरकार के हाथों, आप अभी भी सो रहे हैं। अक्टूबर में बात करेंगे, नवंबर में बात करेंगे, अरे वो बात करना है नहीं करना वो बात अलग है। लेकिन जो लोग बैठे हैं, दबके बैठे हैं, आपसे परमिशन लेके जाएगा कोई वहां जाएगा? तो आप क्या है, वीजा अथॉरिटी बन के बैठ गए हैं? कौन बन के बैठ गए हैं आप? अपना काम नहीं किया आपने, प्रेमबल की बेइज्जती कर दी है आपने, जस्टिस नहीं दी उस लोगों को, आपने इक्वालिटी नहीं समझी, आपने सबका फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया आपने उसमें कि मैं सरकार से डरता हूं। इतना डर आपको मोदी का? सुप्रीम कोर्ट, अरे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आपसे अच्छा है, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छा है, आप कहते हैं हमारा सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। आपका सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं मेरे हिसाब से। इतना डर किस बात का डर? आपको अधिकार है, आप खुद भी केस को ले सकते थे, कोई सूट ले लीजिए, किसने रोका है आपको? ऑर्डर दीजिए गवर्नमेंट को कि कर्फ्यू हटाए वहां से, कि आपको किस बात का डर है? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट बहुत टाइम देते हैं हम। ये पर्सनैलिटी है आपकी, इतना डर। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है तो हाई कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का क्या हाल होगा? ऐसा हॉरर फैला दिया सबने मिलकर इस देश के अंदर कि पब्लिक तबाह हो जाएगी एक दिन। एक सुप्रीम कोर्ट की इज्जत होती थी, एक मान होता था, मंदिर माना जाता था। लेकिन जब मंदिर में डर गया, जिस मंदिर में डर आ गया, तो वह भगवान क्या करेगा? कैसा भगवान, किसका भगवान? 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं, भूखे, पता नहीं कैसे, और सुप्रीम कोर्ट को कोई चिंता नहीं है। अफसोस तो इस बात का है। सरकार को मारो गोली, भाड़ में गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से बड़ा है, फैसला दे सकता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन नहीं। और राष्ट्रपति इसकी तो बात ही छोड़ो, नाम का है, कौन पूछता है? आज हालत ये आ गए, बोलना पड़ रहा है, दुख होता है बोलते हुए, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता था सब, लेकिन मजबूरी है। गुस्सा भी आता है कि क्या हो गया मेरे देश को, इतना अच्छा देश, इतना पावरफुल देश, संविधान इतना अच्छा सब कुछ, लेकिन कोई समझे तब। आज आप पूछिए किसी से संविधान के बारे में क्या जानते हो? अनपढ़ से पूछो मत, पढ़े लिखे से पूछो, जो उसमें हक है जिसको जानने का, जिसकी ड्यूटी है जानना, वो भी नहीं जानता। पढ़े लिखे से तो, अनपढ़ से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे इसमें। लेकिन जो आज का युवा है, जिसने पीएचडी की है, जिसने कह सकते हैं मास्टरी की है, या वो बैचलर डिग्री ली है, या कर रहा है, या इस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, आप उससे पूछ के देख लीजिए, भाई भारत के संविधान के बारे में क्या जानते हो? आपको अगर उत्तर मिल जाए 98% केसेस में, कह देना, हो सकता है 1-2% लोग हों जो समझते हों, लेकिन आपको मेरा चैलेंज है, आप ही बता दीजिए नहीं तो संविधान क्या है। नहीं जानते लोग, आप अपने देश के बारे में नहीं जानते, आप देश के नियम के बारे में नहीं जानते, आप किसके बारे में जानते हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। देश का आपको पता नहीं,
इलेक्शन एमपी का होता है, बात नाली की करते हैं, बात खरंजे की करते हैं। इलेक्शन काउंसलर का होता है, बात पार्लियामेंट की करते हैं। जिस देश में यही नहीं पता कि मैं वोट किसके लिए देने जा रहा हूँ, और वोट दे के आ जाते हैं, हमने मोदी को दे दिया, एमसीडी का इलेक्शन है मोदी को वोट दे दिया, स्टेट का इलेक्शन है मोदी। अरे वोट किसको दिया आपको पता ही नहीं है, आपको किसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था। आप बस मोदी को दिया। सरकार आपके हाथ में बनाना नहीं है, पीएम आपके हाथ में बनाना नहीं है, सीएम आपके हाथ में बनाना नहीं है, आप फिर भी वोट कहते हैं उसको देके आ गए। आपको यही नहीं पता कि आपकी लिस्ट में उसका नाम भी नहीं है, क्योंकि आपको चुनना एमएलए था, आपको चुनना एमपी था, पर आप चुन पीएम को रहे हैं, चुन सीएम को रहे हैं। ये कौन सी अकल है, ये कौन सी पढ़ाई लिखाई है कि आप इतना भी नहीं समझते कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान दिखा दीजिए, कोई मुझे कहा कहता है कि आपको पीएम को चुनना है। हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है पीएम चुनने की, कोई प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम पीएम चुन लेते हैं। एक छोटा सा रिक्शा वाला भी पीएम चुन लेता है, एक भिखारी भी पीएम चुन लेता है, हमने मोदी को चुन लिया। जिस देश में इतना भ्रम हो, उस देश का क्या होगा सोचो। कोई मुझे दिखा दे संविधान के अंदर कहाँ लिखा है कि आपको पीएम को चुनना है, आपको सीएम को चुनना है, आपको किसको चुनना है। आपको कहीं नहीं लिखा पार्टी को चुनना है, किसको चुनना है। कोई दिखा दे संविधान में, मैं मान जाऊंगा, मैं उसके पैर छू लूंगा, लेकिन कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं सोचता कि मुझको किसको चुनना है। जिस दिन ये सोच लेंगे और उसी हिसाब से वोट देंगे तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम देश का कल्याण नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो व्यक्ति पूजा में बिजी हो गए हैं। हमें इंदिरा गांधी की पूजा करनी है, हमें मोदी की पूजा करनी है, हमें अटल बिहारी की पूजा करनी है, हमें इन लोगों की पूजा करनी है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें आदमी का चरित्र नहीं देखना, हमें आदमी का बैकग्राउंड नहीं देखना, हमें नहीं देखना कि ये आदमी हमारा एक्सेसिबल है कि नहीं है, हम इसको एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये हमारी बात वहां तक लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका चोरी का कितना धंधा है, इसका बेईमानी का कितना धंधा है, ये हम सब नहीं देखना चाहते। हम बस चाहते हैं चुन लो मोदी को या इंदिरा गांधी को या जिसको, मनमोहन सिंह को, जिसको भी चुनना है, राहुल गांधी को, जिसको भी चुनना है चुन लो, बस हमारा काम खत्म। हमने तो चुना था, इसने हमारा काम किया नहीं। आप उससे नहीं पूछेंगे जो आपका उम्मीदवार है, रहा है, जो आपका एमपी है, आप उससे बात नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं कि आपका एमपी कौन है, उसके क्या अधिकार है और आपके उसके ऊपर क्या अधिकार है, बस वोट दे दो। जिस देश में इतनी भ्रामिका हो, इतनी बेवकूफ़ी हो, जहां उस देश में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ हैं। हमें सिर्फ सर्विस चाहिए, एक जॉब चाहिए, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ क्या होता है। हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, मेरी पैकेज आनी चाहिए, मेरे को कार मिलनी चाहिए, मेरी ड्यूटी अच्छी होनी चाहिए, मुझे मीटिंग करनी है, देश जाए भाड़ में। एक आधे घंटा भी नहीं है हमारा एक महीने में अपने देश के बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। बस कोई प्रॉब्लम आएगी तो वकील को ढूंढ लेंगे, पूछ लेंगे भाई बता क्या करना है। जिस देश में ऐसे हालात हों, उस देश का क्या होगा ये कल्पना की जा सकती है। हमें अपने देश से कुछ लेना नहीं है, हमें बस दे दिया, प्राइम मिनिस्टर अपने आप करेगा। अरे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आप लोग सोचते नहीं है देश के बारे में, इसीलिए ये हालत है आज की। जिस प्रधानमंत्री को पता लग जाएगा कि मेरे देश के लोग बहुत ही समझदार हैं, वो जानते हैं उनके क्या अधिकार हैं, तो ये देश ऐसा नहीं होगा, और ना ही ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, ना ही ऐसे मंत्री होंगे, और ना ही ऐसे एमपी होंगे। उस टाइम आपके अपने आदमी होंगे, आपकी सोच के आदमी होंगे। आप वो करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि देश में लोकतंत्र है। आज तो लोकतंत्र है ही नहीं, वोट तंत्र है, ईवीएम तंत्र है, हेरा फेरी तंत्र है, इलेक्शन कमीशन चोर, प्राइम मिनिस्टर चोर, सारी पार्टियां चोर, सब एक कांग्रेस चोर, सब डोनेशन चोर, सारे तो चोर हैं। फिर ये कहाँ से लोकतंत्र है? ये तो पार्टी तंत्र है, ये तो मोदी तंत्र है, ये राहुल तंत्र है, ये इलेक्शन कमीशन तंत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट तंत्र है, सारे ही तंत्र हैं। वहां पर मानव तंत्र नहीं है, सिटीजन तंत्र नहीं है, नागरिक तंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। नागरिक की कोई वैल्यू नहीं, वोट नागरिक देता है, उसको ये नहीं पता कि वोट का मतलब क्या है। वोट देके आ गए, बात खत्म हो गई, मेरा रास्ता खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म। अरे वोट आपने दिया किसको, आपको पता ही नहीं है, वोट देके आ गए आप बोल रहे हैं। आपने जिसको वोट दिया उसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उससे कभी मिले नहीं है, उसके माइंडसेट को जानते नहीं है। हमने वोट दे दिया। कोई राम मंदिर के लिए वोट दे रहा है, कोई किसी भी चीज के लिए वोट दे रहा है, देश के लिए कोई वोट नहीं दे रहा, अपने भविष्य के लिए कोई वोट नहीं दे रहा। जिस देश में हालात ऐसे हो जाए वहां क्या होगा। ईवीएम के वोट चल रहे हैं, ईवीएम की चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है, लोग जीत रहे हैं इसी बहाने, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है।
इस देश में नाम का लोकतंत्र है, नाम का रिपब्लिक है, नाम की डेमोक्रेसी है, नाम का सोवर्निटी है, सब कुछ नाम का है। हमारे लिए वास्तव में कुछ नहीं है। जितना मर्जी टैक्स लगा लो हम दे देते हैं, जितना मर्जी सफाई टैक्स लगा लो, जितना मर्जी इनकम टैक्स लगा लो, जितना मर्जी जीएसटी लगा लो, जितने मर्जी डंडे हमें मार लो, जितने मर्जी थप्पड़ मार लो हमें, हम सब खाने को तैयार हैं। तो वास्तव में अभी भी हम गुलाम ही तो हुए ना। आप जब बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, तो कैसे आप नागरिक हैं, कैसे आप वोटर हैं, किस बात का वोट आप दे रहे हैं, क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं। जितना मर्जी पीट ले मोदी, जितना मर्जी पीट ले कांग्रेस, हम पीटते जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। जितने मर्जी पैसा लुटा दें, जितने मर्जी बैंक लुटा दें, जितने मर्जी हेरा फेरी करके भाग जाएं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शोर मचाएंगे बस। शोर मचाने से क्या होता है? हम जानते हैं हेरा फेरी हो रही है, हम होने दे रहे हैं। हम जानते हैं बदमाशी हो रही है, होने दे रहे हैं, हम रोकते नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम गधे हैं, हम कुत्ते बिल्ली हैं। शायद कुत्ता भी अपने एरिया में जिसको नहीं आने देता, हम तो ले कर लो यार, क्या करेगा, थोड़ी अकेला है, शादी थोड़ी की है, इसके बच्चे थोड़ी है, ये क्या करेगा। ये सोच कितनी गंदी यार। शादी से क्या मतलब इस बात का? आप जुम्मेदार आदमी को बैठाए तो शादी उसने की कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शादी से लिंक है टीम बनने का? क्या शादी से लिंक है जॉब करने का? कोई लिंक नहीं है, बेकार की बातें हैं। लेकिन हम ऐसी बात करते हैं यार, आगे पीछे तो कोई है नहीं, क्या करेगा। और जिसके आगे पीछे होता है वो करता है। लाल बहादुर शास्त्री वो हेरे फेरी की थी क्या? जवाहरलाल ने कौन सी हेरा फेरी की थी भाई? है लाल बहादुर शास्त्री ने क्या हेरा फेरी की थी? जिसने शादी के लिए सीट पे क्या हेरा फेरी की? गुजराल ने क्या हेरा फेरी की थी? ये तो कहने की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। एक आदमी की बदनामी करते हुए कह दो चोर है, करप्ट है, भ्रष्ट है, कह दो उसको, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, तो लोग भ्रष्ट मानने लगेंगे उसको, मानने लगेंगे। अरे यार ये तो सब कह रहे हैं भ्रष्ट, सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। मतलब सब कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ। भीड़ चाल जिसे कहते हैं, क्राउड के अंदर है आप, क्राउड में ही रहिए। आदमी होता है जो क्राउड में रह के भी क्राउड में ना रहे, अलग रहे, वो आदमी होता है। लेकिन वो होना बहुत मुश्किल है। हमारी आदत बन चुकी है पागल बनने की, हम बनते रहेंगे, अच्छी तरह पागल बनते हैं। ये देश कभी सुधर नहीं सकता, याद रख लेना, जब तक हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा। हमारा माइंड सेट चेंज करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा। भगवान ने दिमाग दिया सोचने के लिए, सोने के लिए नहीं। हम कहते हैं यार सोना, उसकी चिंता उसे करने दो, हमें क्या लेना है। यस, हमें नहीं लेना है, हमें अपने आप कमा के खाना है। यस, कमाना है, आप ही कमा रहे हैं, दुनिया में और कोई कमा नहीं रहा। हमें रोटी कमा के खानी है। तो आपका खाना वो क्यों खा रहा है? आप सोचते नहीं इस चीज को। हम यार टैक्स देना है दे देंगे, 30% ज्यादा है दे देंगे। आपको टैक्स का क्या हो रहा है वो कोई पूछेगा नहीं। इकोनॉमी क्यों खराब हो रही है कोई पूछेगा नहीं। चिल्लाएंगे, चिल्लाते रहो। उन्हें पता है कहूँगे चिल्लाने क्या फर्क पड़ता है, वोट तो मुझे मिल ही जाएंगे। उनसे आप बात कर लो, हाँ जी गलत किया उसने, कुछ नहीं किया, फिर वोट तो हम उसी को देंगे जी। अरे क्या पागल हो? उनसे पूछना इकोनॉमी क्या खराब है? सब खराब है जी, जॉब नहीं है, बेड़ा गर्क है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पर वोट तो हम उसे देंगे जी देश हित में। वो फिर देश हित की बात करने लगते हैं। जिस समाज में ऐसे लोग हो जाएं जो क्वेश्चन नहीं करें, डरें, अपने पैसे का हिसाब न ले सके, कुछ ना ले सके, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो 50-55 दिन नहीं, वो कश्मीर की जनता को 500 दिन दबा के रखेगा ना, वो रह जाएंगे। क्योंकि हम मर चुके हैं, हमारी आत्माएं जीरो, एनर्जी नहीं है आत्माओं में, शरीर तो हमारे है ही नहीं। जिस देश का ऐसा होता है ना, अंग्रेज भी पछता रहे होंगे आज की तारीख में, हम क्यों छोड़ के आ गए इनको। हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठ गए यहाँ पे आके, जो हमसे हमारी चमचागिरी करते थे, हमारे जूते पॉलिश करते थे आके, वो बैठ गए आज सत्ता में। वो भी सही है अपनी जगह, क्या करोगे आप। ऐसी ऐसी अफवाहें आती हैं, सुन के हैरान रह जाता हूँ। ऐसी ऐसी बातें आती हैं, सुन के हैरान रह जाता हूँ। क्या करेंगे आप? जब तक ये देश जागेगा नहीं, जब तक इस देश से, कहते हैं जो स्टूडेंट होता है उसको पढ़ना जरूरी होता है, वो कुंजी से पास नहीं हो सकता। पास हो जाएगा तो समझ कुछ नहीं आएगा उसको स्टडी करनी पड़ती है, विद्या तभी मिलती है। हम तभी कुछ सीख सकते हैं जब हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम तो सीखने की कोशिश नहीं करते, बस शादी करो, बच्चे करो, बच्चों के फिर शादी करो, उनके बच्चे करो, एक सीक्वेंस हमारा चल रहा है। मेरा वंश चलना चाहिए, देश गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, मैं मरूं तो मेरे को पानी कोई देने वाला। ये सोच ऐसी हो चुकी है और हम इस देश को सुधार नहीं सकते जब तक हमारी सोच ऐसी होगी। जिस दिन सोच बदल जाएगी, आपका देश सुधर जाएगा, भारत सुधर जाएगा। सोच बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। हर जाति, हर धर्म अपने में है, हर सिटीजन अपने में है। कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा। अगर सोच रहे होते तो ये 55 दिन क्लैम्प डाउन नहीं होता, ये 3 दिन में खुल जाता। उन्हें भी डर रहता कोई पूछने वाला है। वो जानते हैं यार हमारी जबान के लोग हैं, हमारी सोच के लोग हैं, हम उनकी भावनाओं को भड़का सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं छोड़ता। वही हो रहा है, देखो वो सही समझे हमको। हमारा नेता समझता है कि मेरे वोटर्स की क्या मेंटालिटी है, क्या मानसिकता है, वो अच्छी तरह जानता है और उसका फायदा उठा रहा है। बस बेवकूफ बनाए जाओ बन जाते हैं, उल्लू बनाए जाओ बन जाते हैं। बेवकूफ भी आप, उल्लू भी आप, जो वो कहें वो आप करते हैं, बात खत्म हुई। इसका मतलब आपको हक नहीं है उनसे बात करने का, और वो अकाउंटेबल नहीं है आपकी तरफ। मेन चीज ये हमने ऐसा बना दिया है।
इसलिए अगर आपको समझ आती है बात ठीक है, अगर आप चेंज हो सकते हैं तो हो जाओ, नहीं हो सकते तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मरते रहो, किसे क्या जा रहा है, हर आदमी ने मरना है, लेकिन चले जाएंगे हमें छोड़ के इस दुनिया को। मेरे को क्या लेना है फिर इस देश से, मैं गया ऊपर, मेरा देश ऊपर है। हम ऐसी बेकार की बात कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो। जब तक हम जी रहे हैं इसकी जितनी कर सकते हैं करें, लेकिन कोई चाहता नहीं सुधरना तो कोई क्या करेगा, मर जाएगा, रो लेगा, 13-14 दिन फिर बैठ जाएगा, फिर काम कर लेगा। ये जिंदगी चलती रहती है। और नहीं तो ऐश करते रहेंगे। आपके वैसे भी मेहनत करें आप, पसीना बहाएं आप, सब कुछ करें आप, बीमार हो आप, ऐश करें नेता, वो ऐश करेंगे। उनने कुछ करना नहीं, उनके बच्चों ने कुछ करना नहीं, उनको खुदाई नहीं करनी, उनको कंक्रीट डालनी, उनको दुकान नहीं चलानी, कुछ चलाना। वो हारेंगे तब भी जिंदगी में ऐश करेंगे, और सीट पे है तो वो अब्यूज करेंगे। वो कर रहे हैं। जब हार जाते हैं कोई बात नहीं, पैसे की कमी तो है नहीं। जो 35-40 करोड़ करके जीत के आएगा उसको पैसे की कमी नहीं है, पेंशन उसको मिल जाएगी, काम उसको मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, उसको क्या चिंता है। उसका तो कैरियर बन गया, उसकी लाइफ बन गई। वो सेवा करने थोड़ी आपके आया, तो कैरियर पॉलिटिशियन है, कैरियर बनाने आया। आप तो उसका कैरियर बनाने में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सेवा तो करने दे रहे हैं उसको। आप तो उसकी नम्रता से बात कर रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उससे अपील कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, जैसे आपके भगवान लगे हैं। पैसे दे के काम करा रहे, फ्री नहीं कर रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ नहीं सोचते कि हम उसको पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, एहसान थोड़ी कर रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन नहीं, एहसान कर रहा है वो देश के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। फर्क इतना है, वो तो देश के लिए कर रहे हैं, आप कुछ देश के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों में, ये फर्क की सोच गलत है। वो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से बकवास कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं देश के लिए कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, हेरा फेरी कर रहा है, आपके लिए देश के लिए कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, आपको बेवकूफ बना रहा है, पूरे देश के लिए कर रहा है। आपको बेवकूफ बनना है, बनते रहिए, किसका क्या जा रहा है। बेवकूफ बनेंगे अपने लिए बनेंगे, नहीं बनेंगे अपने लिए बनेंगे, मेरा क्या जा रहा है भाई, बनो बेवकूफ बनो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। बहुत अच्छे बेवकूफ बनो, पूरे बेवकूफ बनो, आधे बेवकूफ बनो, आपकी मर्जी। कहने का मतलब ये है, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आप नहीं बदल सकते। उसी नाली में पैदा हुए हो, उसी में मर जाना। और ये बंगलों में पैदा हुए, बंगलों में मरेंगे। इनके पीछे रैलियां निकलेंगी, इनकी हड्डियां, इनकी फूल वहां डाले जाएंगे, गंगाओं में डाले जाएंगे, इनकी पूजाएं होंगी, इनकी बातें पता नहीं कहाँ तक होंगी। सब लोग इनकी ऐसे बातें करेंगे जैसे भगवान चले गए। और आप फेंको परे उठा के, यार क्या करना है इसका, बात नाम भी कोई लेगा नहीं आपका। आप ही ने उनको बनाया, आपकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी वैल्यू है। आपके वोट से जीते हैं, लेकिन मालिक हैं आप, नौकर हो उनके। मरते रहो, गुलाम बने रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये देश है भारत, फिर वो कहते हैं भारत माता की जय, जय भारत। भारत का मतलब नहीं जानते, कृष्ण ने बताया उसको भी नहीं जानते। कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई कुछ कहता है, उन्हें पता ही नहीं देश का नाम क्या। मोदी खुद हिंदुस्तान कहता है, राहुल हिंदुस्तान कहता है, सारे बड़े बड़े प्रिंसिपल हिंदुस्तान। इनको शर्म नहीं आती किसी को भी। अपने देश का नाम नहीं जानते, अपनी माँ का नाम नहीं जानते, अपने बाप का नाम नहीं जानते, और कहते हैं हम देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं जानते किसी को ये। और आपको भी वैसे बना दिया, आप भी हिंदुस्तान बोलते हो, आपको वो नाम बोलते जो आपका है नहीं, जो आपको किसी ने दिया, आपने मांग लिया। आपका असली नाम नहीं जानते। आपने संविधान पढ़ा हो तो जानेंगे, पढ़ते तो आप है नहीं, तो क्या करोगे। संविधान जिसको आपको चलाता है, जो आपको पावर देता है, जो आपका माँ बाप सब कुछ आज की तारीख में इस देश को चला रहा है, रूल कर रहा है, उसको आप नहीं जानते। आप उसको जानते जो है नहीं। तो आपका कसूर है भाई। अन्याय ऐसे ही होंगे जैसे हो रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। कहीं एनआरसी में शोर मचेगा, एनआरसी में हंगामा मचेगा, कहीं जम्मू कश्मीर का इशू उठेगा, कहीं कोई और इशू उठेगा, कहीं हरिजन का इशू उठेगा, कहीं रविदास का इशू उठेगा। यही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ काम तो होना नहीं, काम तो कुछ होना नहीं, काम तो कुछ, कहीं नौकरियां जाएंगी, कहीं फैक्ट्रियां बंद होगी, कहीं कुछ होगा। देश ऐसे ही चल रहा है, महामारी चल रही है। एक बीमारी की होती है, ये वैसी इकोनॉमी की महामारी चल रही है। इकोनॉमी आजकल एपिडेमिक्स में है, चलती रहेगी, मरती रहिए, शोर में जाती रहिए, पढ़िए, डिग्री आएगी, नाचिए, ओ 5 मेरे काम नहीं, काम मिलेगा ही नहीं आपको। कोई काम है नहीं तो कहाँ से मिलेगा। उनके लिए तो काम, उनको तो नोट मिलनी है, सीट पे बैठ के उनको खा जा रहे हैं। जा तो आप कर रहे हैं, मरिए, भूखे मरिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अब तो सबके एनआरसी बनेगी तो सबको निकाल देंगे। जिससे यार तेरे पास सबूत नहीं, किसके सबूत, कितनी बात होती है, किसको आधों के पास सबूत नहीं होगी मैं देश का नागरिक हूँ। और जिसके होगा उसके रिकॉर्ड में लेंगे नहीं। वो जो एनआरसी का हो रहा है वहाँ आसाम में हो रहा है ना, किसी के पास सबूत होने के बाद भी नाम नहीं है, तो आपके साथ ऐसा होगा। लगे रहिए लाइन में। जब देश में राज ऐसा हो जाए, अराजकता, ये अराजकता है, मैं इसको अराजकता, मिस रूल है ये रूल है अब्यूज का। जब अब्यूज हो जाता है, ऐसे लोग आ जाते हैं जो गुंडागर्दी में बिलीव करते हैं, जो तानाशाही में बिलीव करते हैं, जो दादागिरी में बिलीव करते हैं। जब ऐसे लोग आ जाएं, 233 लोग जहाँ MP ऐसे हों, उनमें से बड़ी बड़ी सीट पे बैठने वाले भी ऐसे हों, तो फिर देश का ऐसा ही होता है। और हम कहते हैं जोर से, जय भारत, भारत माता की जय, जय संविधान। बोलते रहिए भारत माता की, धन्यवाद आपका।